Hello my dear students, now we will start Python part 3. Till now we have done Python part 1 and Python part 2. Basically all the fundamentals of Python we have done till now. Now we will learn the looping concept, the conditions and looping constructs in Python. First of all, planning. What do we mean by planning? Whatever we do in our life, that is called planning. Without planning, at least we are not going to take any of the step. It's important to be able to plan code with the help of self-explanatory tools, that is called flowchart. In computer language, we use flowcharts. A good plan creates a guide you can follow. It helps you to plan efficient structure and it communicate to others what your code will do. Means अगर आपके पास एक बहुत अच्छा plan है, then first of all what it will do, it will guide you that what steps you have to do, follow. Second one, it will help you to plan more efficiently. And third things, it will communicate to others that what finally your code is going to give back. Got it? Then with the help of flowchart we can plan our coding. First of all, let's know what is a flowchart. The pictorial representation of a task, means any program, any coding, whichever we represent with the help of diagrams. Fine, these are pictures, sort of pictures you can say. So if using diagrams we are representing something, that is a flowchart, the visual representation of step by step process of your programming. Okay, the flowchart depicts the flow of program, means आपके program में first step, what will be the first step, then second step, then third step, then step by step the flow in your program is done with the help of flowchart. ऐसा नहीं हम flowchart में अपनी मर्जी कोई भी drawing कर सकते हैं. In the flowchart the fixed figures, these are the fixed figures which we can use in the flowchart. Let's learn them one by one. First of all, this figure, this is the oval shape. Fine, this is used in a flowchart for starting and ending only. Got it? Next is arrows. These arrows shows us, guide us towards the flow of the program, कि प्रोग्राम राइट साइड में मूव कर रहा है, कि डाउनवर्ड जा रहा है, कि लेफ्ट साइड जा रहा है. ईच एंड एवरीथिंग मीन्स द फ्लो ऑफ योर कोडिंग इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एरो. नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट. आप प्रोग्राम में वेरिएबल लेके इनपुट भी लेते हैं एंड रिजल्ट भी प्रिंट करवाते हैं. तो वट एवर योर इनपुट एंड आउटपुट इज देयर इन योर कोडिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस पैरेललोग्राम. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग, मीन्स कैलकुलेशंस. जो भी मेन काम आपका कैलकुलेशंस का है ना, प्रोसेसिंग है, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टेंगल फिगर. देन लास्ट वन इज दिस diamond shape, or you can say rhombus is there. This is used for any decision making. Fine, कोई भी decision जिसका आंसर yes या no में आएगा, at that condition this diagram will be used. Only these 5 figures can be used while drawing a flowchart. Now let's have one or two examples for the flowchart. First of all, see here, this is the simpler one. In this, obviously I have told you that starting and ending, that will be done with the help of oval shape. Done. In this coding we are adding 2 numbers. Okay, so first of all starting is done. Then input मैंने बताया था with the help of parallelogram. First of all input पहला नंबर किया हमने, input read A. Okay, then input of second number is done, read B, means first number is taken, second is taken. Now calculation करनी है. Calculation के लिए rectangle was to be fixed. Okay, in rectangle here we have done the calculation that calculates sum as A plus B. Got it? Now last stage is output. Input यहाँ हो गया, यहाँ calculation हो गई. Here we are going to express the output. अब आप क्या देख रहे हैं? Isn't this box wrong?
रॉन्ग है ना? यस, दिस इज रॉन्ग. इन प्लेस ऑफ दिस डायग्राम, this figure, this type of figure means a parallelogram must be drawn. Okay, I have taken this figure knowingly so that you can identify. Okay, so here this print sum means it is output. In the parallelogram figure it must be written, and the and is there. Clear? Let's take another example. Starting is done with the oval shape. Here what we are calculating or what we are doing means from given two numbers we are checking that which is maximum. Okay, whichever is greater you can say. First of all start किया, then again parallelogram में हमने क्या किया, इनपुट लिया, x इनपुट हुआ, y इनपुट हुआ, फिर we are checking is x greater than y. मीन्स डिसीजन लेना है, या तो yes होगा या no होगा, है ना? तो इन दैट केस डिसीजन बॉक्स मस्ट बी यूज्ड. तो दिस इज द डिसीजन बॉक्स. रोम्बस बोला था मैंने या डायमंड शेप. हेयर वी आर चेकिंग x इज ग्रेटर देन y. आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स. अगर ये ट्रू है तो हमारी आउटपुट क्या आई, मीन्स कैलकुलेशन क्या आई कि मैक्स वेरिएबल में x सेव हो गया. ओके, तो मैक्सिमम इज x. अगर ये फॉल्स है तो मैक्सिमम इज y. ओके, एंड लास्ट में आउटपुट में हमने क्या दिया, अगर ये मैक्सिमम है तो दिस x विल बी प्रिंटेड, इफ y इज मैक्सिमम तो y विल बी प्रिंटेड. ओके, क्लियर? अगर ये दोनों हमें अवॉइड करने थे तो सीधा हम ट्रू को यहाँ मैच कर सकते थे, फॉल्स को भी मैच कर सकते थे. ओके, गॉट इट? एंड इन द एंड ओवल शेप अगेन एंड इज देयर. क्लियर है? These 5 diagrams you can see arrows are used to show the flow of the diagram, flow of your coding. like इसके बाद या like यहाँ देखें, इसके बाद या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, कैसे पता चल रहा है? with the help of arrows we got to know this. clear? चलिए नेक्स्ट. प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो मीन्स हमारा प्रोग्राम जिस भी सीक्वेंस में चलता है, that flow we can control, it's in our hand. Fine. First of all, sequential program are executed in a sequential order. In the last video मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था, means adding two numbers. Okay, in that program sequence was there. First of all we have taken two numbers, then we have added and we have printed the output. Sequence was there, input, process and output. That was done, means that was a sequential program in which a particular sequence is followed. Here next is selection, conditional or decision, means any selective condition is there. When the program uses a condition to decide, fine, कोई प्रोग्राम कोई कंडीशन के ऊपर चल रहा हो, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू तो ये होगा, फॉल्स है तो ये होगा. Fine, two types of statements are there. If this condition is true, तो set A of statement will happen. If this set is false, then this will happen. Means your program is depending on a condition. That is called selection, conditional or decision state programs. Next is iteration or looping. Loop क्या होता है? एक ही चीज़ को continuously बार बार रिपीटेशन करना, और उसका दूसरा नाम इटरेशन. व्हेन अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जब कुछ स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स इन द लूप, मीन्स अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट विच नीड्स टू बी रन, जो बार बार लगातार मल्टीपल टाइम्स द सेम स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, दैट इज लूप. अब यहाँ देखें, सीक्वेंस बताया मैंने. सीक्वेंस में क्या है? सिंपल सीक्वेंस इज देयर दैट आफ्टर दिस स्टेटमेंट दिस विल एग्जीक्यूट, आफ्टर दिस विल एग्जीक्यूट. फाइन. सिलेक्शन में क्या था? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल हैपन, इफ दिस इज फॉल्स देन दिस विल हैपन. ओके, तो मीन्स योर प्रोग्राम इज डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन. क्लियर? इटरेशन में क्या होगा? हेयर अ कंडीशन इज चेक्ड and if the condition is true then this will happen, then again it will go for checking, then again it will come there. जब भी ये ट्रू होगी तो it will remain in same condition. दिख रहा है? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती you will not be out of this loop. Now see,
नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, जिसको आप सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट बोल रहे थे. दिस वाज दैट इन दिस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन as flow of control. Means order of execution means after one statement which statement will flow, that depends on particular condition in the decision making statements. Fine, these are of 4 types: if else, if elif and nested if. Today we will learn all these. Here first of all, if statement. if का सेंस दिमाग में आ रहा है. if means if this happens, ऐसा हुआ तो ये होगा, वैसा हुआ तो वो होगा, वो सेंस आती है ना दिमाग में. the same sense is working here. in this it's the easiest method for putting the conditions. okay, means हम जो स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं, फर्स्ट इज शेल मोड जिसमें आपका प्रॉम्प्ट है, सेकेंड वन इज स्क्रिप्ट मोड. फाइन, इन द स्क्रिप्ट मोड हाउ द प्रोग्रामिंग इज डन. लुक हेयर, सबसे पहले इफ टाइप होगा, देन योर कंडीशन, 2:2 के साइन लगेंगे. ओके, देन वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट यू कैन डू. एंड उसके बाद अगर आप बाहर आना चाहते हैं, यू कैन सी दिस इज द स्टेटमेंट. इंडेंटेशन याद है, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होंगी दैट विल बी इनसाइड. पहली स्टेटमेंट के इफ के स्टार्ट होने के बाद सब 4 स्पेसेस अंदर हैं, देखो अपने आप, दीज आर इनसाइड इफ. और ये स्टेटमेंट इसी के लेवल पे आ गई तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ इफ. ओके, ये लूप से, इससे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट से बाहर आ गए स्टेटमेंट पे. चलो लेट्स ओपन आइडल, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं. दिस इज आर शेल. ओके, स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं. चले, दिस इज आर स्क्रिप्ट मोड. लेट्स टाइप, मैंने टाइप करके रखा हुआ है. लुक हेयर, हेयर व्हाट वी हैव डन, एज अ वेरिएबल आई हैव टेकन. वी आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन विच वी विल चेक दैट वेदर अ पर्सन कैन वोट और नॉट. ओके, हम यूज़र से उसकी एज मांगेंगे और हम फिर उसे रिप्लाई में बताएंगे येस यू कैन वोट और नॉट. क्लियर है? ठीक है, ये जो लूपिंग मैंने स्ट्रक्चर बताया, सेम स्ट्रक्चर आई एम यूजिंग हेयर. सबसे पहले एक वेरिएबल लिया मैंने, उसको इंटीजर में हम लेंगे क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन हम न्यूमेरिक वैल्यू को ही चेक कर सकते हैं ना, इंटीजर. और विद इन द ब्रेसेस इनपुट स्टेटमेंट लगाइए. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन इट. ओके, इनपुट, और यूज़र से हम कह रहे हैं एंटर योर एज. जितने ब्रेसेस ओपन हुए हैं सेम ब्रेसेस विल क्लोज. वेरिएबल बन गया एज, वट एवर द यूज़र विल mention the age that will go in age. okay, अब हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट शुरू हो गया. if लिख दिया, देन किस वेरिएबल में जा रही है एज, एज में. वी आर चेकिंग इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन लगा दी. ठीक है, और इस 2 का साइन जैसे आप प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इट विल कम हेयर. ये आगे आएगा ही नहीं, ये यहीं पर आएगा आपका कर्सर. ओके, देन यू विल राइट प्रिंट. मीन्स आप इस स्टेटमेंट लिखने के बाद जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट मीन्स इट इज प्रिंटिंग व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो इसके नीचे की स्टेटमेंट है दैट विल प्रिंट. अगर फॉल्स है तो नहीं. ओके, चलिए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कोई भी कंडीशन जो भी आपके प्रोग्राम आप बनाना चाह रहे हैं, देन प्रिंट, मैं प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट येस यू कैन वोट. नाउ यू कैन सी इंडेंटेशन हेयर, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अंडर दिस इफ स्टेटमेंट. ओके, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट, दिस वन, इट्स नॉट अंडर इफ बिकॉज ये दोनों सेम लेवल पे हैं. अब हम लूप से बाहर आ गए, तो मैं दिखाने के लिए मैंने प्रिंट करवा रही हूँ यू आर आउट ऑफ लूप. ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं. मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इफ़ के नाम से, लेकिन कंडीशन क्या है, PY और PWY. ठीक है, सेव कर दिया. नाउ आई एम रनिंग. नाउ एज मांग रहा है, 16 डालूं. क्या हुआ, लूप से बाहर आ गई. क्यों भाई, क्यों आ गए बाहर? बिकॉज व्हाट वी हैव डन, क्या किया था हमने,
लेस अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने तो कुछ डाला ही नहीं ना, हमने तो सिर्फ ट्रू का डाला, दैट इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो लूप से बाहर आ गए, ठीक है, आउट ऑफ लूप। अब चलिए मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, अब आपको ट्रू कंडीशन का डाल के दिखाती हूँ। एज मांग रहा है आपसे, चलो 20 डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यस यू कैन वोट, और फिर हम लूप से बाहर आ गए, हमारा ये चल जाएगा स्टेटमेंट। आई थिंक इफ इज क्लियर, ठीक है। इफ जब आपके पास यू हैव कंडीशन एंड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट विल रन, दिस इज इफ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे आता है इफ एल्स। अब पिछली प्रॉब्लम क्या दिखी हमें, अगर वोटिंग की एज ट्रू है मीन्स इफ इट इज़ ग्रेटर देन 18 तो हमारे पास मैसेज था डिस्प्ले करने के लिए, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन वी वर नॉट हैविंग एनीथिंग, है ना, तो वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो रही है। ओके, इफ अलोन, ये इफ जो अकेला इफ था दैट टेल्स अस दैट इफ कंडीशन इज ट्रू बट नथिंग फॉर फॉल्स, है ना। इफ एल्स हैव टू पॉसिबिलिटी, ओके, यहाँ देखो ये फॉर्मेट है, इफ लगेगी, कंडीशन इज ट्रू का सिंबल, फिर ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट आपने रन करनी है वो आप लिखेंगे, एल्स आ जाएगा, जैसे इफ था, इफ का पार्टनर है एल्स, ठीक है। एल्स के बाद वो स्टेटमेंट जो आप फॉल्स होने पे रन करना चाह रहे हैं, जो आपकी कंडीशन फॉल्स हो। प्रैक्टिकल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकल से। मैं लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट हटा देती हूँ, हमें लूप के बाहर की समझनी नहीं है अभी। चलिए, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब एल्स, एल्स जो है वो इफ़ के सेम लेवल पे लिखना है, ध्यान रखना है ये चीज़ें, ठीक है। अब जैसे एंटर लगाएंगे देखो इंडेंटेशन फॉलो हो रही है अपने आप। अब जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट के सॉरी एल्स के अंडर है, दिख रहा है, मैंने कोई स्पेस दे के आगे नहीं आई हूँ, एंटर लगाते ही इट इज़ देयर। अब कौन सी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, व्हेन द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, तो मीन्स क्या लिखे, नो, सॉरी, यू कांट वोट, ठीक है। जैसे जो भी आपने मैसेज लिखना है लिख दिया, हो गया मेरा, ठीक है। सिर्फ क्या किया, पहले इफ था अकेला, उसमें जो कंडीशन थी वो ट्रू में चलेगी, लेकिन एल्स, भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तो इफ का पार्टनर आया एल्स, ठीक है। ये दोनों सेम लेवल पे, इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ओके। जो ये 4 स्पेसिस अंदर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, इसका मतलब दिस इज अंडर दिस एंड दिस इज अंडर दिस, ओके, दिख रहा है। दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज अंडर इफ and this print statement is under else, clear। now save the program, already save किया हुआ है, सेव कर दिया, run मॉड्यूल, क्या आया, एज, अब मैं कम डालती हूँ, है ना, 15, क्या दिखा रहा है, नो सॉरी यू कांट वोट, पहले क्या था, कम डालने पे वो लूप के बाहर आ गया बिकॉज हमने एल्स की कोई स्टेटमेंट डाली ही नहीं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलिए, नाउ इफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ समझ दिख रहा होगा, दो इफ है ना, एक इफ है और एक एल्स के साथ इफ है। सेंस अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर कि पहले हमारे पास वी वर हैविंग ओनली वन कंडीशन, वही कंडीशन ट्रू होती तो कुछ स्टेटमेंट हमारी चल रही थी, और फॉल्स थी तो कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन हो रही थी, है ना। बट हेयर वी विल बी हैविंग मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज़्यादा जब कंडीशंस होती हैं देन वी यूज़ इफ एलिफ, ओके। तो हेयर there are many situations that require multiple conditions to be checked, and in such cases we can change the conditions using if elif। अब फॉर्मेट देखो ध्यान से, if पहली कंडीशन लगी कॉलन का सिंबल, ये तो क्लियर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होंगी, गॉट इट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो यहाँ जंप करेगा, एल इफ मीन्स इफ इट इज़ फॉल्स तो यहाँ जंप करके दूसरी कंडीशन चेक करेगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये चेक होगा, ओके। एंड इफ दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स फिर वो यहाँ जंप करेगा, ओके। और ये दोनों कंडीशंस ही नहीं चली देन इट विल
run, it will execute these statements else. Got it? ज़रूरी नहीं है एक ही एलिफ आए, आप 2 कंडीशंस, 3 कंडीशंस, 4 कंडीशंस, एज मच कंडीशंस यू कैन रन. चलिए लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन. स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं अपना. ठीक है, चलो हम ग्रेड लेते हैं, है ना. एक वेरिएबल लिया मैंने ग्रेड. ग्रेड को इंटीजर में, सॉरी मार्क्स लेते हैं, ग्रेड नहीं. यूज़र से मार्क्स डलवा रहे हैं. ओके, इंटीजर में इनपुट करवाया, यूज़र से हमने डलवा रहे हैं एंटर योर मार्क्स. ओके, क्लियर है. एक और ब्रैकेट क्लोज. डन, मार्क्स डल गए. अब हमने कंडीशन लगाई है इफ मार्क्स, ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90. अगर बच्चे के मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं देन क्या होगा, कॉलन लगाया. चलिए अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट ग्रेड इज ए. ओके, ए ग्रेड दे दिया 90 अबव वाले को. क्लियर है. अब हम एलिफ लगाना है, तो इफ के अंदर तो नहीं है जाना, आगे आएंगे. अब हम बैक स्पेस यूज करके आगे आ गए, एलिफ लगाया अब हमने. ठीक है. अब सेकेंड कंडीशन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, ओके, तो क्या होगा, प्रिंट ग्रेड इज बी. क्लियर है. इन द सेम वे आप जितने भी मार्क्स एलिफ ग्रेटर देन 60, एलिफ ग्रेटर देन 50, जितने भी आप चाहें यू कैन डू. मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको. और लास्ट में जब ख़त्म करेंगे, सारी कंडीशंस जब हो गई, सपोज आई एम हैविंग ओनली दीज 2 कंडीशंस, लास्ट में एल्स ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखना है. ओके, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, ओनली द प्रिंट स्टेटमेंट. इफ ऑल द गिवन कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइंग, ओनली देन प्रिंट एल्स की स्टेटमेंट रन होती है. ओके, तो लिख दूं मैं यहाँ पर क्या, नो मार्क्स. मार्क्स ही नहीं दिए भाई तुमने, तो ग्रेड कहाँ से देंगे हम. डन, क्लियर. सेव करते हैं. सेविंग दिस प्रोग्राम, grade.py. डन. लेट्स रन इट. रन किया, एंटर योर मार्क्स. मैंने मार्क्स डाले 92, आ गया ग्रेड ए. दोबारा रन करें, 70 से ज़्यादा डालेंगे अब की बार. मार्क्स डाला मैंने 72, ग्रेड इज बी. क्लियर है. कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट. चलिए डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बाद ही क्लियर होता है, सिर्फ देखने से नहीं आता. नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड, नेस्टेड इज व्हाट, पहले भी ये वर्ड सुना होगा, एक के अंदर एक, वन इनसाइड अदर, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड. ओके, चलो. इट अलाउज यू टू चेक फॉर मल्टीपल टेस्ट expressions and execute different codes for more than 2 conditions. जब हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो, ओके, देन दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. अब देखो ये इफ है, ये इफ की स्टेटमेंट रन होते ही अंदर दूसरा इफ आ गया. अगर ये इसके अंदर नहीं होता तो इंडेंटेशन, इंडेंटेशन आपको बिल्कुल क्लियर दिखा रही है कि दिस इफ इज इनसाइड दिस, है ना, ये वाला इसके अंदर है, तो दिस इज नेस्टेड इफ. एक इफ के अंदर दूसरा इफ. चलो लेट्स सी प्रैक्टिकल. नाउ लुक, आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम. पहले समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अ वेरिएबल आई हैव टेकन नम, इंटीजर में लिया मैंने, यूजर से इनपुट करवाया, एंटर अ नंबर. Here in this program what we are checking कि यूज़र ने जो नंबर डाला है that is a positive number और a negative number. लेकिन एक चीज़ और हो सकती है ना, अगर यूज़र पॉजिटिव नंबर डाल रहा है it means that can be 0 also. ओके, हो सकता है ना. तो अब हम वही चेक कर रहे हैं. लुक, इफ़ लगाया, नम इज़ ग्रेटर देन 0. नम क्या है, जिसमें यूज़र नंबर डालेगा वो नम में आ जाएगा. ओके, नम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉलन लगाया. उसके बाद ये मैंने पहले भी बताया, इफ़ के और एल्स के बीच में जो स्टेटमेंट हैं वो कौन सी स्टेटमेंट हैं, विच विल रन
इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये नाम इज जो नंबर यूजर ने डाला इफ दैट इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स दीज ऑल स्टेटमेंट विल रन इफ इट इज ट्रू। 0 से बड़ा नंबर डाला तो, या इक्वल टू भी डालेगा हुआ साइन है ना, या तो 0 डालेगा या उससे बड़ा डालेगा, तो ट्रू कंडीशन है। तो दी स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना इस इफ का एल्स ये वाला नहीं है, दिस इज द एल्स ऑफ इफ, दिस इफ, ठीक है। इंडेंटेशन बार बार बता रही हूँ मैं। चलिए यहाँ सपोज हमने 0 या 0 से बड़ा नंबर डाला तो डेफिनेटली कंडीशन इज ट्रू, तो वो इस वाले इफ में आ जाएगी, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। हेयर अब कंडीशन में चेक क्या कर रही हूँ कि जो भी यूजर ने नंबर डाला क्या वो 0 के इक्वल है, इक्वल टू का सिंबल दिखाया था मैंने, है ना, डबल इक्वल्स टू लगते हैं तब इट मीन्स इट इज चेकिंग इक्वल, कि जो नंबर डाला वो इक्वल टू 0 है उसके अंदर। अब इस इफ के अंडर की स्टेटमेंट है, ये देखो इंडेंटेशन यहाँ पर, इस इफ के अंडर ये है, तो हेयर अगर वो 0 है तो हेयर प्रिंट विल प्रिंट 0 एल्स। अब ये इस इफ का एल्स ये है, ठीक है, इस वाले इफ का एल्स अगर वो 0 नहीं है तो इट विल प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ओके। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है ही नहीं तो दीज इन स्टेटमेंट्स में ये हमारा लूप फंसेगा ही नहीं, सीधा वो यहाँ से जंप करके और यहाँ आएगा एल्स में, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो। क्लियर? इफ द कंडीशन इज ट्रू ओनली देन इट विल फॉलो दीज कंडीशंस, अदरवाइज इट विल जंप टू एल्स नेगेटिव नंबर, ठीक है। सेव करती हूँ मैं इसको एंड रन किया, एंटर अ नंबर, नंबर मांग रहे हैं भाई, क्या डालें, 12 डालते हैं, ओके। 12 आई हैव रिटन, प्रेस एंटर, व्हाट इट इज शोइंग, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है, फाइन। आप दोबारा रन करते हैं एक बार इसी प्रोग्राम को, अब क्या -12 डालो, -12 नेगेटिव नंबर, प्रोग्राम सही रन कर रहा है। अब क्या डालें, 0 भी डाल के देख लें एक बार, चलिए आई एम एंटरिंग 0, यस इट इज शोइंग 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इफ के अंदर दूसरा इफ, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इज इटरेशन। अभी तक में हमने इफ के चारों पार्ट किए, सिंगल इफ, फिर इफ के साथ एल्स, देन इफ एलिफ, और चौथा किया हमने नेस्टेड इफ। डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द इफ, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं आएगा, ओके। फिर हमने स्टार्टिंग में 3 सिलेक्शन लूपिंग स्टेटमेंट समझी थी। सबसे पहले सीक्वेंस, सिलेक्शन, सीक्वेंस हम कर चुके हैं, सिलेक्शन हम कर चुके हैं। नाउ द लास्ट वन इज इटरेशन, ओके। इटरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू रिपीटिशन, बार बार रिपीट होना, ओके। रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट। लूप मीन्स एक गोल, मतलब एक प्रॉपर कॉन्टिन्यू, अगर सपोज हम कोई सॉन्ग चला रहे हैं और उसमें हम लूप का ऑप्शन होता है, लूप सेट कर दें तो जैसे ही वो सॉन्ग फिनिश होगा अगेन दैट विल रीस्टार्ट। अगर मैंने उसको 10 टाइम्स सेट किया ना लूपिंग में, तो जब तक वो 10 बार पूरा गाना नहीं चलेगा इट विल नॉट स्टॉप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लूपिंग का, ओके। दिस काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन। लूपिंग मीन्स continuously repetition of same set of statements, okay. In loop condition is checked through a variable called control variable। यहाँ पर भी एक variable होगा, in that condition is checked with that variable। there are 2 types of iteration statements, एक for loop, एक while loop। हम दोनों सीखेंगे one by one, let's do it। for loop, in the for loop इट इज यूज टू इटरेट। इटरेट का दूसरा मीनिंग बार बार बता रही हूँ, रिपीट। इट विल रिपीट इट सेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस। इन फॉर लूप वी आर ऑलरेडी नो हाउ मैनी टाइम द लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इन दिस फॉर लूप हमें पहले से पता होता है दैट कितनी बार ये लूप चलेगा। एक बार इसका सिंटेक्स देखें, देन विल डू इट प्रैक्टिकली। फॉर अ कीवर्ड वी हैव टू राइट, जैसे इफ लिखते हैं ऐसे ही फॉर लिख दिया हमने। नाउ द वेरिएबल जिस पे आप लूप लगाएंगे, ओके। इन फिक्स कीवर्ड है, इन आना ही आना है। देन इटरेबल मीन्स किस चीज़ पे आप लूप लगा रहे हैं, दैट वेरिएबल और दैट लिस्ट, वट एवर यू कैन से। और फिर कंडीशंस, यहीं तक ये लूप होता है।
अगर ये लूप में ये चीज़ें नहीं होनी है फिर आप क्या करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज एल्स, अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। यहीं तक आप लूप समझे ध्यान से। ओके, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स ओपन आवर स्क्रिप्ट मोड। इन दिस स्क्रिप्ट मोड चलिए सबसे सिंपल प्रोग्राम, सबसे पहले मैंने बताया आपको वी हैव टू टाइप फॉर, ठीक है। फिर आई एम टेकिंग अ वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल ले लो, सपोज आई एम टेकिंग लेटर, ओके। देन अगेन अ कीवर्ड आई हैव टोल्ड यू इन, देन एक नेम लेते हैं। चलो हमने नेम स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग हमें पता है ना, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, किसी में भी आप ले सकते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ओके। देन सेपरेटर, कॉलन लग गए। नाउ लूप, बस फॉर लूप बन गया। अब इस फॉर लूप में है क्या, आप ध्यान से समझो एक बार। फॉर एंड इन आर कीवर्ड, ये फिक्स होंगे हमेशा। लेटर, इट्स अ वेरिएबल जो हम हर लूप में अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, दिस वन। हेयर द एक्चुअल डेटा ऑन विच वी आर रनिंग आवर लूप, ओके। फॉर लूप क्या होता है, एक एक चीज उठाता है, उसको शो करता है। दिस इज बेसिकली डज दैट। चलो करते हैं। यहाँ मैं प्रिंट कर रही हूँ, हमारा लूप इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है बट लूप चल इसके अंदर रहा है, इन द लेटर। तो प्रिंट हम लेटर को करवाएंगे। और ऑलवेज आई हैव टोल्ड दैट वेरिएबल्स नेवर बी रिटन इन कोट्स, वेरिएबल को कभी कोट्स में नहीं लिखेंगे। गॉट इट। लूप बन गया, ये रेडी है। सेव करते हैं हम इसको ज़रा। डन। नाउ रनिंग। क्या हुआ देखो, पहली बार लूप चला, डी डिस्प्ले हुआ, दूसरी बार चला ए, फिर वी, फिर पी, पी एस। स्ट्रिंग जब तक खत्म नहीं होगा सेम लूप चलता रहेगा, इट विल कीप ऑन रनिंग। क्लियर है। चलो इसी में मैं करती हूँ, ऊपर देखते हैं। एक मैं बना रही हूँ, एक वेरिएबल लिया सी, ठीक है। इसमें एक लिस्ट बनाते हैं। चलो 1 2 3 4 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा मैंने। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जितनी मर्जी वैल्यूज डाल दें, कॉमा से अलग अलग करके। दिस इज कॉल्ड लिस्ट, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसे, दिस इज अ लिस्ट। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इट इज क्रिएटेड विद कॉमा सेपरेशन, ठीक है। अब मैं ये लूप लगा रही हूँ किस पे, लिस्ट पे, सी में। ये एरो हटा दिया। इट्स क्लियर। देखो मेरा लूप जिस वेरिएबल के थ्रू चलेगा दैट इज लेटर, वो यूं ही रखा है मैंने, लेकिन किस चीज पे चलेगा दैट इज सी। क्लियर है। अब रन करते हैं इसको, क्या दिखेगा आपको। सेव किया मैंने, लुक पहले स्ट्रिंग पे चला था, अब जितने भी वैल्यूज मेरी लिस्ट में होंगे ऑल दैट विल बी शोन। क्लियर है। चलिए इसी में एक और प्रोग्राम करते हैं। नाउ आई वांट कि लिस्ट में जितने भी वैल्यूज हैं शो मी ओनली द इवन नंबर्स, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट। क्या करें बताओ, क्या करें। कंडीशन है, कौन से होते हैं इवन नंबर्स, विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देते हैं, है ना। और रिमाइंडर का फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, मॉड्यूलस, याद है। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है, ये लेटर क्या कर रहा है, इस सी में से एक एक अक्षर उठा के लाएगा। पहले 1 को लाएगा, फिर 2 को लाएगा, फिर 3 4 5। सबसे पहले 1 आ रहा है, ठीक है। 1 किसके अंदर सेव है, सी के अंदर, ठीक है। लेकिन जब लूप के अंदर आ गए तो वो किसके अंदर, कौन दिखा रहा है हमें, लेटर, है ना। तो लेटर के अंदर हमारा पहली बार जब लूप चल रहा है तो पहली बार लेटर में वो क्या सेव है, 1। हम चेक कर रहे हैं अब, इफ लेटर, लेटर क्या है, इट्स अ वेरिएबल, मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस 2 मतलब लेटर के अंदर जो भी है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद 0 आता है तो प्रिंट हो जाए। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन अब ये वाला प्रिंट जो है ये इफ के अंदर जाएगा, इंडेंटेशन, है ना। अगर यहाँ होता तो वो फॉर के अंदर था, लेकिन इफ के अंदर तो इफ हमें एक और इंडेंट देना पड़ा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। क्या हुआ, ओहो इफ का कॉलन लगाना तो भूल ही गए हम, ठीक है। लुक इस लिस्ट में सिर्फ 2 और 4 थे,
दिख रहे हैं? क्लियर है? इवन नंबर्स, ऐसे ही ऑड नंबर्स निकाल लेंगे हम। तो जितना आप दिमाग अपना रन करेंगे, जितना दिमाग को चलाएंगे, उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स बना पाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज रेंज फंक्शन। रेंज नाम से क्लियर है, मीन्स सम स्टार्टिंग विल बी देयर, कुछ एंड होगा, तो टिल स्टार्टिंग टिल एंडिंग एक रेंज है ना। तो इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट। अभी मैंने लिस्ट बनानी सिखाई थी, लेकिन सपोज मेरी लिस्ट में 100 नंबर्स हैं, तो मैं तो टाइप करने में ही मुझे आधा घंटा लग जाएगा, 1, 2, 3, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हेयर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर जो हम बहुत इजीली दे सकते हैं, सिर्फ स्टार्ट बताना है, आपने एंड बताना है। ओके, दैट्स इट। अब रेंज देते कैसे, ध्यान से देखेंगे। रेंज कीवर्ड आता है ना। ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट बताना है, एंड बताना है। सबसे मेन चीज पहले समझेंगे ध्यान से, जो एंड होता है दैट इज डन -1। अगर मुझे 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करवाने हैं ना, तो मुझे एंड जो है वो 10 नहीं देना, 11 देना है, क्योंकि एंड जो भी आप स्टॉप वैल्यू देंगे उसमें -1 लेता है ये। लुक हेयर, जैसे मैंने रेंज 6 दी, तो इट मीन्स इट इज एंडिंग वैल्यू। स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली अपने आप ये लेगा 0, ठीक है, मीन्स 0 to 6। और फिर मैं आपको कह रही हूँ 6 को लेगा ही नहीं, 6 -1 करेगा। जो भी आप स्टॉप वैल्यू देंगे, ठीक है, अगर एक ही वैल्यू दी है तो इट मीन्स इट इज स्टॉप वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू इज 0, वो अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी, 0 to 6। और स्टॉप वैल्यू जो है उसमें -1 करना है, मीन्स 0 to 5 वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? दूसरा तरीका, रेंज में स्टार्टिंग स्टॉप मीन्स 1 से स्टार्ट करना है 7 तक, लेकिन स्टॉप में फिर वही बात है, -1 करना है, मीन्स 1 to 6 डिस्प्ले होंगे। लेकिन अब ये तीसरी चीज क्या है, दिस इज कॉल्ड जंप वैल्यू। कितने जंप करे, एक ही जंप करना है, फिर 1 के बाद एक जंप किया 2, दूसरा जंप किया 3, फिर जंप किया 4, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 कर दूं यहाँ पर, इट मीन्स 1 के बाद 2 जंप किया, 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर 3 के बाद 2 जंप करेंगे, 5 आएगा। फिर समझ रहे हैं? चलो प्रैक्टिकली देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। मेरा ये लूप का प्रोग्राम वही पुराना मैंने खोला है, इसमें फिलहाल मैं ये लिस्ट है ना ख़त्म कर रही हूँ यहाँ से। चलो हेयर लेटर पे लूप चला रहे हैं हम, लेकिन बस किस चीज़ पे लूप चलना है, वैल्यूज हम चेंज करें। यहाँ पर हम रेंज लगा रहे हैं, ठीक है। रेंज मैं चाहती हूँ 9। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, मैं ये भी हटा रही हूँ, अभी हमें कंडीशन नहीं लगानी है, ठीक है। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है हमने, डन, ठीक है। अब रेंज 9 का मतलब क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू इज, अगर एक ही वैल्यू दे रखी है तो स्टार्ट वैल्यू इज 0, स्टॉप वैल्यू इज 9, लेकिन कहाँ तक चलेगा, 9 - 1 तक, यानी कि 0 से 8 तक डिस्प्ले होना चाहिए। रन करते हैं, देखते हैं हम सही कह रहे हैं कि नहीं। लुक, है ना, 0 to 8, राइट। चलो अगर मैं यहाँ 2 से स्टार्ट करूँ, तो दिस इज स्टार्ट, दिस इज स्टॉप। 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलेगा, 9 - 1 तक, यानी कि 8 तक। रन करते हैं, देखो 2 से 8 तक, क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ जंप दिया, भाई 2 का जंप करो, 2 जंप करके कूदना है। देन रन किया, लुक, है ना, 2 में 2 जंप किया 4, फिर जंप किया 6, जंप किया 8। समझ में आ रहा है? 3 का जंप करके देखते हैं क्या होता है। 3 जंप किया, लुक, 2 में 3 जंप किया 5 में 3 जंप किया 8। दिखाएगा उसी रेंज से जो आपने यहाँ पर दी है। क्लियर? अब इस बिल्कुल 2 लाइन के प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं दैट show a list from a number 0 to 100 with 10 jump, है ना। इवन नंबर्स 0 से 100 तक के इवन नंबर्स दिखाओ, 0 से 100 तक के ये ऑड नंबर्स दिखाओ, कर सकते हो ना आराम से। चलो 1 to 100 के इवन नंबर्स करते हैं। कैसे? 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक चलाऊँ, 100 तक चलानी है, तो 101 कर दूँ, ठीक है। और जंप 2 की करते हैं। फाइन, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखो जी, हो गए इवन नंबर्स, कोई मेहनत नहीं लगी। 0 2 4 6 8
आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब फॉर लूप हमने समझ लिया। नाउ व्हाइल लूप. In while loop, the execution of Python coding is done with a block of code repeatedly as long as the condition of loop is true. Means in this loop while word use हुआ, here a condition is given. In this condition जब तक ये condition true है the loop will run. ठीक है, लेकिन जैसे ये condition false हो जाएगी it will come out of the loop. क्लियर है? कंडीशन लगी and here the statements of the condition. Let's do it practically. मैंने एक प्रोग्राम लिखा है अभी. Look here. See. With the help of this program, I want to print numbers from 1 to 5. 1 से 5 तक गिनती शो करवानी है मैंने. ठीक है. सबसे पहले I have taken a variable num जिसमें मैंने 1 वैल्यू असाइन करी है. ओके. नाउ जैसे लूप दिखाया है सेम वैसे ही बनाया है. while लूप लिखा, while देन वेरिएबल कंडीशन, बेसिकली कंडीशन. मैंने कंडीशन क्या लगाई कि तब तक ये लूप चले जब तक जो नम है वो लेस देन एंड ग्रेटर देन 5 नहीं हो जाता. या तो 5 से छोटा रहे या 5 के बराबर हो जाए, तब तक ये लूप चलेगा. ओके. फिर मैंने प्रिंट कर दिया नम को. नम में क्या है, अभी 1 है. फिर मैंने एक कैलकुलेशन करी है कि नम में 1 ऐड हो जाए और वो नम में ही सेव हो जाए. ठीक है. नम इज इक्वल टू नम प्लस 1. अब ये लूप कैसे चलेगा, पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर समझाती हूँ मैं इसमें हुआ क्या है. लुक 1 2 3 4 5 रन हो गया, दिख रहा है. लेकिन हुआ कैसे, ध्यान से समझेंगे. हेयर पहली बार ये लूप चला क्योंकि एग्जाम में आप पूछा, सपोज ये कोडिंग दे दी तो दे विल आस्क दैट हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन. तो आपको पता लगाना आना चाहिए. फर्स्ट इज हेयर वेरिएबल इज 1. जब ये लूप के अंदर ये वेरिएबल जाएगा एट दिस टाइम कंडीशन चेक हुई, छोटा है, यस छोटा है तो अंदर जाएगा. ओके. कंडीशन ट्रू है, अंदर गया. नाउ एंट्री के टाइम पे दिस नम इज 1, प्रिंट हो गया 1. फिर ऐड हुआ नम में 1, 2 हो गया नम यहाँ पर, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा अभी, ऊपर गया वापस यहाँ पर, फिर चेक हुआ अब 2 है, लेस देन 5 है ना. ठीक है, कंडीशन ट्रू है, वापस अंदर आया. नाउ नम 2 प्रिंट हो जाएगा, दूसरी बार प्रिंट हो गया, दूसरी बार रन हो गया लूप हमारा. ठीक है. अब 2 + 1 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, वापस ऊपर गया, अगेन 3 चेक हुआ, भाई कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर अंदर चला गया, तीसरी बार अंदर घुस गया लूप में, है ना. 3 प्रिंट हो गया. नाउ अगेन 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 ऊपर गया, फिर चेक हुआ, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 प्रिंट हो गया. फिर 4 का बन गया 5, वापस ऊपर गया, 5 चेक हुआ, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है ना. तो 5वीं बार ये लूप के अंदर जाएगा, 5 प्रिंट हो गया. अब 5 का बन गया 6. ठीक है. अब वापस ऊपर गया, अब कंडीशन चेक होएगी व्हाट कि नाम क्या है अभी हमारा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5. ट्रू है, नो, ना तो वो छोटा है ना बड़ा है, तो लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं, तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप. ठीक है. तो कितनी बार लूप चला, 5 बार. आराम से बैठ के लूपिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब समझ में आएगा. ठीक है. सपोज मैं इसको 10 कर दूं तो कितने तक चली काउंटिंग, 10 तक. ठीक है ना, ये देखो. ठीक है, क्लियर है. आप देखो एक चीज और, इसकी जगह अगर मैं कर दूं, आपको मैंने सिखाया था शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, याद है पिछली वीडियो में थे, इक्वल टू 1, नम प्लस इक्वल टू 1. इसका मीनिंग भी वही है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, है ना. तो मैक्सिमम आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट मीन्स नम इज इक्वल टू नम प्लस 1. इसका भी रन वही आएगा, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना, सेम इट इज. इट्स क्लियर. नाउ यूजिंग एल्स विद लूप्स, मैंने आपको फॉर लूप के स्ट्रक्चर में भी नीचे एल्स दिखाया था, व्हाइल में भी दिखाया था, है ना, लेकिन कोडिंग में यूज करके नहीं दिखाया. तो नाउ वी विल लर्न दैट दोनों में सेम तरीका है यूज करने का. इट्स वेरी इजी. व्हेन द कंडीशन ऑफ योर लूप इज फॉल्स देन योर एल्स स्टेटमेंट विल रन. चलो उसी पहले वाले प्रोग्राम में करते हैं. ये लूप अभी हमने रन किया ना, इसी में सपोज ये सब हो गया और लूप से बाहर आ गया. ठीक है. फिर अगर आपने एल्स दिखाना है तो मैंने पहले ही बताया व्हाइल के लेवल में एल्स रहेगा, यहाँ एल्स नहीं लिखेंगे, है ना. हम इसके साथ इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. एल्स लिखा
एंटर, अपने आप इंडेंटेशन फॉलो हो रही है। प्रिंट क्या लिखूं, आउट लिख देते हैं, आउट ऑफ लूप। ठीक है, डन, क्लियर, रन करें। लुक, प्रोग्राम रन हो गया, लूप रन हुआ, बट लूप रन होने के बाद ये बाहर आ गया आउट ऑफ लूप। दिस इज हाउ द एल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद व्हाइल लूप एंड फॉर। नाउ इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट वर्ड हमने बहुत बार सुना है ना। इनफाइनाइट मीन्स विच नेवर एंड्स। तो लूप विच नेवर एंड्स मीन्स वेयर कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, है ना। कई बार ऐसे लूप्स में फंस जाते हैं, एग्जाम में भी आता है, लाइक 2 लूप्स दे दिए तो विच लूप इज इनफाइनाइट, तो वी शुड नो हाउ टू चेक द कंडीशन, द प्रोग्राम इन विच कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। फाइन, टू कैंसिल दैट टाइप ऑफ लूप वी हैव टू प्रेस Ctrl+C। चलो, आपका जो प्रोग्राम अभी हमने किया ना, उसी में मैं, लुक हियर, उसी में मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम सपोज नम को हम इक्वल टू चेक करें 1 के, ओके, क्योंकि 1 लिया है, 1 के इक्वल ही रख रहे हैं, और इंक्रीमेंट हटा दें। ठीक है, मैंने क्या लूप लगा, कुछ नहीं किया मैंने, वेरिएबल आई हैव टेकन 1, कंडीशन भी यही लगा रही हूँ कि नम इज इक्वल टू 1, तो ट्रू है कंडीशन, और कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया। तो ये लूप कितनी बार भी चेक होगा, चाहे 1000 बार, लाख बार चेक होए, नम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये लूप तो कभी फॉल्स, कंडीशन तो कभी फॉल्स हुई नहीं ना। चलो एक बार रन करके देखते हैं। लुक, इट्स कीप ऑन रनिंग, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। दिस इज इनफाइनाइट लूप। अब इसको स्टॉप कैसे करें, कीबोर्ड से Ctrl+C। गॉट इट, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ नेस्टेड लूप। अभी हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, मीन्स इफ इनसाइड इफ अनदर इफ, है ना। तो सेम सेंस इज हेयर, नेस्टेड लूप मीन्स वन लूप इनसाइड अनदर लूप, ओके, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मीन्स एक लूप बाहर होगा और उसके अंदर दूसरा लूप। लेट्स सी, मैंने अभी एक लूप बनाया है, देखो जरा, लुक हेयर, समझना है पहले। हेयर 2 फॉर लूप है, दिस इज आउटर लूप, दिस इज इनर लूप। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे एक स्टार से एक शेप बनेगी। ठीक है, समझेंगे, पहले समझना है। लुक, कोई भी वेरिएबल लिया num1 फॉर लूप, दिस इज कंट्रोल वेरिएबल, इस फॉर लूप का कंट्रोल वेरिएबल num1, इस फॉर लूप का कंट्रोल वेरिएबल num2। ठीक है, कोई भी आप ABC XYZ कुछ भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। पहले फॉर लूप को समझेंगे। num1 में क्या चलेगा, रेंज 0 to 1, 0 to 1 मीन्स स्टार्टिंग एंड स्टॉप, है ना। स्टॉप में -1 होता है, क्लियर है, मीन्स एक ही बार ये लूप चलेगा। ठीक है, पहली बार जब num1 चलेगा तो num1 की वैल्यू होगी 0, 1 तक ये जाएगा ही नहीं, बिकॉज 1 - 1 हो जाएगा, है ना। तो एक बार ऊपर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, ओनली 1 टाइम, क्लियर है, एक ही बार चलेगा। अब ये जब यहाँ से निकलेगा, देन इट विल एंटर इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप में कंट्रोल वेरिएबल num2, हेयर रेंज लगाई है हमने num1 से जो वेरिएबल आ रहा है, पहली बार एक ही बार चलेगा ये फर्स्ट लूप। यहाँ से वेरिएबल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 वैल्यू आ रही है ना, 0 + 1। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई 1 और एंडिंग वैल्यू 10। 10 का मतलब -1 9, यानी कि 1 to 9 रेंज चलेगी, 1 to 9, है ना। पहले एक वैल्यू आएगी इस लूप में चलेगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 हो जाएंगे पूरे तो ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही बार चलेगा, तो ये वापस अंदर घुसेगा ही नहीं, तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, है ना। लूप वही तो है, एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। फाइन, तो अब यहाँ थे हम, 1 to 9 हुआ। अब प्रिंट में क्या करवा रही हूँ, स्टार प्रिंट करवा रही हूँ। कल पहले वाली वीडियो में हमने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना सीखा था। किसी भी स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग उतनी बार डिस्प्ले होता है। फाइन, तो स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड एज मैनी टाइम्स एज द नंबर। तो यहाँ मेरे स्ट्रिंग है स्टार, दिस स्टार इज मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एंड num2 इज कौन सा, मेरा कंट्रोल वेरिएबल सेकेंड फॉर लूप का। तो पहली बार ये लूप रन हो रहा है तो कौन सी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है,
फिर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं। मैं इसको रन करती हूँ, साथ साथ आपको समझाती हूँ। देखो ये आया है ना, मैं इसको इधर करती हूँ, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो सेकेंड लूप फर्स्ट टाइम रन हुआ तो num की वैल्यू, num2 की वैल्यू 1 आई, तो स्टार इंटू 1 यानी कि स्टार एक बार डिस्प्ले होगा और देन इट विल जंप टू नेक्स्ट लाइन। एक बार डिस्प्ले होगी नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर सेकेंड टाइम जब ये दूसरा लूप, पहला लूप तो एक अंदर घुस गया है ना यहाँ पर, तो जब सेकेंड लूप अब 9 बार चलेगा ये, सेकेंड टाइम इसकी वैल्यू 2 आएगी, स्टार इंटू 2, स्टार 2 बार डिस्प्ले होगा। थर्ड टाइम स्टार इंटू 3, फिर स्टार इंटू 4, स्टार इंटू 5, ऐसे करके 9 बार तक। ठीक है, ऐसे डिस्प्ले होता जाएगा, द फिगर इज क्रिएटेड। दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप वर्क। नाउ द जंप स्टेटमेंट्स, नाम से क्लियर है, जंप मीन्स वेयर वी कैन स्किप अ पार्ट ऑफ एनी लूप और इवन वी कैन टर्मिनेट अ लूप, स्किप। Okay, jump statements in Python are used to alter the flow of loop, like you want to skip a part or you want to terminate a loop. All these three are jump statements. One by one we'll do it. First of all, break statement. It terminates the current loop. सबसे मेन चीज terminate कर देती है, loop से ही बाहर आ जाएगी break statement के बाद, and resumes execution at the next statement after the end of the loop. और loop से बाहर आने के बाद whatever the statement is there that will be executed. Let me show you. ये for loop हमने किया था, this is the control variable of the for loop और ये string है। first of all d will print, then a, then v। रन करके दिखाती हूँ आपको, look ये है। ओके, उसके बाद यहाँ इसी में मैं if लगाती हूँ। ठीक है, देखो ये इफ लगाया मैंने, वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल ए है, मैंने चेक किया अगर वेरिएबल में वी आता है, पहले डी प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा आराम से। फिर वी की बारी आएगी, वी चेक होगा, यस, जब ए इक्वल टू वी होगा एट दैट टाइम ब्रेक मीन्स लूप खत्म, उसके आगे ना पी पी एस और नथिंग विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, इसका यही होना चाहिए ना, चेक करते हैं एक बार, लुक राइट, दिस इज ब्रेक। जहां पे भी आप ब्रेक स्टेटमेंट देंगे, फ्रॉम देयर योर लूप विल बी टर्मिनेटेड। क्लियर। नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न्स द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। मीन्स क्या क्या बोला इसने कि लूप की बिगिनिंग में दोबारा पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू लिखा, मैंने सिर्फ ब्रेक हटा के कंटिन्यू किया है, रन करते हैं। क्या हुआ, V ही नहीं है, इट मीन्स यहाँ देखें ध्यान से, व्हेन D आया कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंट हो गया, A प्रिंट हो गया, V की बारी आई तो इसने V को स्किप कर दिया और फिर कंटिन्यू पे पहुंचा, ये वापस ऊपर पहुंचा, क्यों V की टर्न आई, V यहाँ से चल गया, कंटिन्यू पे आके V स्किप, वापस ऊपर पहुंचा, अब P की टर्न, फिर P की टर्न, फिर S की टर्न, है ना। इन दिस वे इट इज गेटिंग प्रिंटेड। I think it's clear. Returns the control to the beginning of the while loop. वापस दोबारा से लूप की स्टार्टिंग में पहुंच जाता है, वहां से एग्जीक्यूशन फर्दर करता ही नहीं है। क्लियर। नाउ पास स्टेटमेंट, इट्स द नल स्टेटमेंट। जब आपने कोई कोडिंग कर रहे हैं, लूप की प्रॉपर प्रिपरेशन इज देयर बट नथिंग टू एग्जीक्यूट, एट दैट टाइम नल स्टेटमेंट टू बी पास्ड। द इंटरप्रेटर डज नॉट इग्नोर अ पास स्टेटमेंट बट नथिंग हैपन्स and the statement results in no operation when you don't want any execution। ठीक है, जब आपको कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं करना है। लुक, सपोज मैंने लूप चलाया लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है भाई, मैं सीधा पास लिखा है मैंने। ओके, रन करें, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एरर भी नहीं है मेरे प्रोग्राम में। देखो दोबारा करती हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूटेड हो तो एग्जीक्यूट तो हुआ but nothing is printed, means when we don't want an execution it's a null statement। I think all these are clear. Do the practice very well again and again and keep learning. Thank you, bye.